بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہمارے 30 ویڈیو جو ہے اسلامک ہسٹری کے ہو گئے، تو ان 30 ویڈیو کے اندر یا 30 اسواق کے اندر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، اس کے متعلق ہم نے تقریباً جو ہے الحمدللہ کافی حد تک سمجھا دیا۔ اس میں اللہ کے رسول کا نسب، جو ہے دادا دادی نانا نانی والد والدہ، اللہ کے رسول کے چچا اور جو ہے بیویاں بچے اولاد نواز نواسیاں جتنے تھے، تقریباً ہم نے جو ہے الحمدللہ اس کو جو ہے کافی حد تک سمجھانے کی کوشش کری ہے۔ اب یہاں سے جو ہے یہ اگلا چیپٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات کو بیان کر رہے ہیں، تو ایسا ایسا چلتے پھر اللہ کے رسول کی پیدائش پھر آگے کا انشاءاللہ جو ہے چلتا رہے گا، آگے کے اسباق جو ہے اسی طرح چلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو آج کے سبق میں ایک تو عرب کو سمجھانا ہے کہ عرب کا علاقہ اور جو ہے اس میں کیا کیا کون کون سے قسم ہیں عرب کی، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا نسب جو ہے ہم نے اس میں بنو اسماعیل بنو اسرائیل دونوں کو سمجھا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے عرب کے معنی ہیں۔ عرب جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں، عرب کہتے کسے ہیں؟ تو عرب کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو جنگل کے ہے نا، ریگستان، جنگل ریگستان یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے، کیونکہ جہاں ریگستان ہوگا جنگل ہی ہوگا، وہاں کوئی جو ہے پیداوار اور جو ہے وہاں زرخیز علاقہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک نے اس کو وادی غیر ذی زرع کہا ہے کہ جہاں کوئی جو ہے اگنے کی کوئی چیز نہیں ہے، پانی نہیں تھا وہاں پہ، پورے ریگستانی علاقے کے اندر اکثر پانی نہیں ہوتا، اس لیے وہاں کھیتی وغیرہ بھی جو ہے نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو عرب بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا عرب کے معنی آتے ہیں فصیح اللسان، یعنی بہت اچھا بولنے والے۔ عرب کے معنی کیا آتے ہیں؟ بہت اچھا بولنے والے، دوسرا معنی۔ تو اسی طور پر جو ہے عرب لوگ، اور عربی زبان بہت اچھی زبان ہے، فصیح زبان ہے، اور جو ہے بہت بہترین زبان ہے، تو عرب والے اپنے آپ کو اچھا بولنے والا سمجھتے تھے، اس لیے دوسرے لوگوں کو عجمی کہتے ہیں۔ ایک تو عرب ہے، جو عرب ہیں وہ عرب ہیں، عرب کے علاوہ جو ہے وہ عجمی ہیں، وہ عجم ہے نا۔ تو عجمی کے معنی آتے ہیں جو گونگے کے، نہ بولنے والے کے، اس لیے اس کو عرب بھی کہا جاتا ہے۔ دو وجہ سے جو ہے اس کا نام عرب رکھا گیا، دونوں ہی وجہ جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پورے علاقہ ہے عرب کا، آج بھی جو ہے بہت سارا علاقہ عرب کا جو ہے خالی پڑا ہے، بنجر پڑا ہے، وہاں نہ کوئی رہتا ہے اور نہ کوئی وہاں کھیتی ہے، نہ کوئی جو ہے آبادی ہے، بالکل ریگستان علاقہ ہے، جنگل کا علاقہ ہے۔ آج بھی جو ہے بہت سارا علاقہ عرب کے اندر ایسا موجود ہے۔ اور اس زمانے میں ابھی انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو آہستہ آہستہ سمجھائیں گے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم چھوڑ کر آئے، جب تو کچھ بھی جو ہے وہاں پر نہیں تھا۔ دوسری بات عرب کا نقشہ، انشاءاللہ ہم نے جو پیچھے نقشہ ہی بنا رکھا ہے عرب کا، اس کے علاوہ یہ میپ ہے ایشیا کا، تو اس کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھائیں گے کہ عرب کہاں ہے، کس طرح ہے، کس طرح جو ہے وہ آباد ہوا، اسی کو تو ہم نے تھوڑا سا سمجھا ہے انشاءاللہ۔ اس چیز عرب جو ہے جزیرہ نما ہے، اس کو ہم نے پہلے ہی بتلایا تھا، یعنی 3 طرف پانی اور ایک طرف جو ہے خشکی ہے، وہاں سے دوسرے ممالک ہیں، جزیرہ نما اسے کہتے ہیں نا۔ جزیرہ جو ہوگا وہ تو خالی پانی کے اندر ہوگا، ٹاپو جس کو کہتے ہیں، آئیلینڈ جسے کہتے ہیں نا، اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر 3 طرف پانی اور ایک طرف جو ہے خشکی ہے، دوسرے ملک ملے ہوئے ہیں، تو اس کو جو ہے جزیرہ نما کہتے ہیں، یعنی جزیرے جیسا یا ٹاپو جیسا مثال کے طور پر۔ اسی طرح ایک بات اس میں جو ہے نقشے میں جو سمجھنے کی جو آگے سمجھائیں گے، جو عرب تھا اصل میں پہلے، جہاں اب عرب ہے وہاں عرب نہیں تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں جو سب ریگستان اور جنگلی علاقے تھے، اس کے نیچے جو ہے یمن اور عمان جہاں آج موجود ہیں وہاں رہتے تھے عرب، کیونکہ وہ سمندر کے کنارے تھا، تو سمندر سے کچھ پانی کچھ جو ہے زرخیز علاقہ تھا، اس لیے وہاں لوگ بستے تھے، وہی عرب کہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ اوپر کا پورا علاقہ جو ہے وہ خالی تھا۔ انشاءاللہ اس کو جو ہم ابھی آخری میں اس کے بعد سمجھائیں گے۔ اس کے علاوہ میں اس چیز کو سمجھا رکھا ہے، عرب کی 3 قسمیں ہیں، یہ تو عرب باعدہ، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، پہلے جو ہے قبیلہ قریش ہم نے سمجھایا تھا، ابھی اس چیز کو ہم نے سمجھایا تھا، اب تھوڑا سا مختصر طور پر اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ جیسے قوم عاد قوم سمود ایک ختم ہو گئے، ان کا جو ہے پورا چیپٹر اور ساری نسل جو ہے ان کی بالکل ختم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا، پورے کی پوری قوم جو ہے تباہ و برباد ہو گئی، ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہی۔
दूसरा है अरब आरिबा, यानी असल अरब, जो अरब वहीं रहते थे ना। इनके नस्ल में कहतान नाम का एक आदमी था, इसलिए इनको कहतानी अरब भी कहा जाता है। हमने यहाँ लिखा है। इसको जो है यमन और ओमान वगैरह के जो लोग थे वहां रहते थे, वो लोग हैं। जो कबीले जुरहुम एक लिख दिया, एक कबीले सबा, कौम सबा भी जो है वहीं रहा करती थी। अरब मुस्तारिबा, जो आकर वहां बसे। खत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरब के नहीं थे, वो अरब से जो है दूसरे मुल्क से यानी शाम से आकर जो है अरब में बसे, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बसाया और फिर वहां से चले गए। तो क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां आकर बसे हैं, तो इसलिए अरब मुस्तारिबा हैं, यानी आकर बसने वाले। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलाद है सारी, वो जो है अरब मुस्तारिबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है हज़रत इस्माइल की औलाद में है। ये चीज यहाँ जो है समझिए, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जो नबी गुजरे हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए वो सब इन्हीं के औलाद में हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो लड़के थे, एक तो इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे इसहाक अलैहिस्सलाम, दोनों नबी हुए। यहाँ तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल है जिसमें अल्लाह के रसूल है, इसको हम जो गिना देते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसका कई सारे जो है बीच में वास्ते हैं, यानी बीच में कई सारे नाम है जो हमने इस जिक्र के नाम में मिले। हमें ज्यादा तलाश भी नहीं करा, मिल जाते हैं तो कुछ, लेकिन हमने उनको तलाश नहीं करा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में आकर जो है अदनान नामी शख्स हुए हैं। इसका नाम जो है पहले दिन से ही आ रहा है। अदनान या रब भी कहा जाता है, या कबीले अदनान भी कहा जाता है उन्हें। अदनान, माद, नज़ार, मुजिर, इलियास, मुद्रिका, खुजैमा, किनाना, नजर, मालिक, फहर। फहर का लकब जो है कुरैश है, इसको हमने बतलाया था, अच्छे समझाया था पहले भी। फहर के बाद फिर गालिब, लुई, काब, मुर्रा, किलाब, कुसई। कुसई को भी हमने जो है अंडरलाइन कर दिया, इनके बारे में आगे बतलाएंगे इंशाल्लाह। इसका ये भी जो है खासतौर बड़ी पर्सनैलिटी है, तो इसलिए इनका नाम भी याद समझिए, कुसई। उसके बाद अब्दुल मुनाफ, हाशिम, जो हाशमी घराना चलाए, बनु हाशिम, इनके नाम से। फिर अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी तो हमने थोड़ा सा इसको यहाँ कर दिया। तो यहाँ तक जो है इस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक जो है इनका नसब मिल जाता है। तो इन सबको बनो इस्माइल कहेंगे। क्या कहेंगे? बनो इस्माइल, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है। बनो के माने मैंने पहले ही बतलाया था, पहले सबक के अंदर औलाद क्या आते हैं, नहीं इस्माइल की औलाद। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो है इनका नसब मिल जाता है। इसी तरह इनके दूसरे बेटे थे इसहाक अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इनके बेटे थे इसराइल। क्या नाम है इनका? वहाँ इस्माइल है और यहाँ इसराइल है। तो इनकी जो इसीलिए चले बनो इसराइल जो मशहूर है वो इन्हीं की औलाद है सब। बनी इसराइल कहते हैं ना, बनी इसराइल, बनो इसराइल दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। बनी इसराइल का ज्यादा तस्करा होता है, बनो की जगह बनी, दोनों लफ्ज सही है अपनी जगह। तो इन इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे कौन है? इसराइल अलैहिस्सलाम। असल में इनको दूसरे नाम से याद किया जाता है, याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। इसराइल जब कबीले का नाम आता है तो जब तो बनी इसराइल ही कहते हैं, बनी याकूब कोई भी नहीं कहता, बनी इसराइल ही कहते हैं। लेकिन जब नबी का नाम आएगा उस जगह याकूब अलैहिस्सलाम को नाम से जो इनको याद किया जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन इनका असल नाम इसराइल था। याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम जो है इसराइल था। याकूब कहते हैं पीछे आने वाले को। तो याकूब अलैहिस्सलाम दो भाई एक साथ पैदा हुए, जुड़ गए। पहले इनके बड़े भाई आए, इसके बाद जो है याकूब अलैहिस्सलाम यानी इसराइल अलैहिस्सलाम आए। तो याकूब कहते पीछे आने वाले को अकब से बनाए है ना, इसलिए इनको याकूब कहने लगे, यानी छोटे भाई, इस तरह जो है कह सकते हो उसको। इसलिए इनका नाम भी क्या है, याकूब बढ़ गया, लेकिन असल नाम इनका क्या है, इसराइल था। तो इन्हीं से जो है इनकी नस्ल सारी क्या कहलाई, बनी इसराइल। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो है बहुत सारे नबी आए, उनमें से बनी इस्माइल में तो सिर्फ हमारे नबी हैं, इनमें कोई नबी नहीं है ना। लेकिन ये जो इसहाक अलैहिस्सलाम है, इनकी नस्ल में बहुत सारे नबी आए, बल्कि बाद किताबों के अंदर लिखा है 70,000 नबी आए ना। और जो है उसके अलावा बहरहाल यानी बहुत ज्यादा नबी जो है बनी इसराइल के अंदर आए हैं। तो ये इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे इसराइल, जिनका नाम क्या है, याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। उनके लड़के थे यूसुफ अलैहिस्सलाम।
याकूब अलैहिस्सलाम के लड़के कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये 12 भाई थे, मशहूर वाकया है, आप हज़रात ने सुना भी होगा। तो 12 भाई का जो हर यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करना मकसूद नहीं है, ना उनकी हिस्ट्री बयान करना मकसूद है, खाली नाम बयान कर दिया ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनके 12 भाई थे, तो उन 12 भाइयों के खानदान चले आगे, तो इसलिए बनी इसराइल के 12 कबीले ही चले हैं आगे। आगे चल के मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आएगा, तो उसमें भी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा और समुद्र के अंदर रास्ते बने, तो बाकायदा 12 रास्ते बने 12 भाइयों के लिए। तो जहां भी खास तौर इस तरह का मामला होता था, तो 12 ही चीजें हुआ करती थी 12 कबीलों के लिए। उनके जो खानदान थे 12 भाइयों के, वही आखिर तक यही चलता चला गया, 12 कबीले ही। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, उन 12 बेटों से जो बनी इसराइल की 12 जो है नस्ल और 12 कबीले वो आगे तक चलते चले गए। जो हमने नाम लिखे ना आगे, ये लाइन तारीख से तो हैं, लेकिन नसब के एतबार से नहीं है। वे तो सब नसब के एतबार से हैं, तो इनके बेटे ये, इनके बेटे ये, इनके बेटे ये, यहाँ बेटे के एतबार से नहीं है। ठीक है, हो सकता है आगे पीछे जो है दूर में बेटों है, तो बनी इसराइल के अंदर सारे के सारे, लेकिन जो है हमने ना तो इसको ज्यादा इस पे वक्त लगाया इस चीज की वजह से, और ना ही हमने इसको ज्यादा ढूंढा भी कौन किसका जो है। कभी बनी इसराइल की इंशाल्लाह तारीख बयान करेंगे तो उस जगह इसको जो है देखेंगे कि कौन किसका बेटा है, कहाँ से किसकी नस्ल चली है, किसका नसब है। नसब के एतबार से नहीं है, ये लाइन तारीख है कौन किसके बाद आए उसका लिए ना। इस तरह यहाँ तक तो इसहाक के बेटे इसराइल, इसराइल के बेटे यूसुफ, ये तीनों तो बाप बेटे हैं। इसके बाद जो है ये बाप बेटे नहीं है तो इसी नस्ल के अंदर हो सकता है कोई किसी के भाई से, कोई किसी के भाई से निकला हो, लेकिन लाइन तारीख है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जो है अय्यूब अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम, ये दोनों तकरीबन आसपास जो है वक्त में दुनिया के अंदर आए, दोनों नबी, ये भी बनी इसराइल के अंदर थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, ये दोनों भाई थे, मशहूर जो है इनके बारे में, ये भी इनके बाद आए। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी बने यूशा बिन नून, ये मूसा अलैहिस्सलाम के ही शागिर्द थे, इनकी औलाद में नहीं है। हमने पहले बताया कि हमने औलाद के तौर पर इनको नहीं लिखा, नसबन नहीं लिखा, लाइन तारीख से लिखा है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है यूशा बिन नून, फिर जो है शमाइल या शमवील, दोनों तरह जो है इनका नाम दिया जाता है, ये नबी हैं, ये भी गुजरे। फिर आए तालूत, ये जो है बादशाह थे, ये नबी नहीं थे। कुरान पाक के अंदर जो है इनका जिक्र भी है। इनके जमाने में दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, ये नबी थे। इनके बाद तालूत के बाद जो है दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह भी बने, नबी बने और बादशाह भी बने। फिर इनके बाद जो सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी रहे, ये इनके बेटे थे दाऊद अलैहिस्सलाम के, ये बादशाह भी थे और नबी भी थे। और एक नाम है जुल्करनैन, ये भी बनी इसराइल के अंदर गुजरे हैं, इनका जिक्र भी जो कुरान पाक के अंदर सूरह कहफ के अंदर है, जुल्करनैन का। तो ये जो है नबी नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ बादशाह थे, बड़े अच्छे बादशाह जो है बनी इसराइल की उसके अंदर गुजरे हैं। इनके बाद जो उज़ैर अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र भी कुरान पाक के अंदर है, ये नबी थे ना। उसके बाद सिकंदर बख्त, एक बादशाह गुजरे हैं, सिकंदर आजम के नाम से सुना भी होगा आपने वाकया इस तरह का, सिकंदर आजम ना। इन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया को फतह कर लिया था, थोड़ी बहुत जो है इलाका बाकी रह गया था इनके फतह करने से, तकरीबन पूरी दुनिया ही तो इन्होंने फतह कर ली थी। तो ये बादशाह थे बनी इसराइल के, ये नबी नहीं थे। इसी तरह इलियास अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम और यसा अलैहिस्सलाम, ये भी नबी थे। इनके बाद जो तकरीबन ये तीनों आसपास जमाने के अंदर गुजरे हैं। इसके बाद जकरिया अलैहिस्सलाम, ये भी नबी थे। इनके बेटे हैं यहया अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे यहया अलैहिस्सलाम। और जकरिया अलैहिस्सलाम के जो है ईसा अलैहिस्सलाम, ये भांजे या इस तरह के कोई जो है इनका ताल्लुक है, यानी जकरिया अलैहिस्सलाम जो है ईसा अलैहिस्सलाम के खालू लगते थे, तो ये इनके रिश्तेदार हैं ईसा अलैहिस्सलाम जकरिया अलैहिस्सलाम के। और जकरिया अलैहिस्सलाम ने ही जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरबियत की थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है उनका जो वाक़या आएगा इंशाल्लाह उसको बतलाएंगे। तो मरियम अलैहिस्सलाम की तरबियत जो है, और वो हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम के ही पास रहा करती थी, और उनकी खिदमत के अंदर और उनकी तरबियत के अंदर रहा करती थी। ईसा अलैहिस्सलाम तो सबसे आखिरी नबी है बनी इसराइल के, यहाँ से इसराइल अलैहिस्सलाम से शुरू होकर बनी इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम पर नबियों का सिलसिला जो है यहाँ पर इनका खत्म हो गया ऐसे ही। और ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई नबी नहीं है। यहाँ बनी इसराइल के नबी खत्म हो गए ईसा अलैहिस्सलाम पर, और फिर बनु इस्माइल जो यहाँ चल रहे थे, इसमें कोई नबी नहीं था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसी नस्ल के अंदर आए।
और तकरीबन 550 साल का जो है अरसा है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गए हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को, इस दरमियान जो है तकरीबन 550 साल का जो है अरसा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी के अंदर पैदा हुए। बाद किताबों के अंदर 70 भी लिखा है और बाद किताबों के अंदर 71 लिखा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 33 साल की उम्र में दुनिया चले गए। हमने ईस्वी बतलाया था पहले कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हुई। तो अगर 570 में से 30 साल निकाल दिए जाए या 33 साल निकाल दिए जाए तो 537 से 540 साल के आसपास ही बनेंगे, यानी तकरीबन 550 साल के आसपास का जमाना वो गुजरा है। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान का जो है फासला है।